Hello guys, so in the last video we have studied about the plasma membrane of the bacteria. Before that we have studied about the cell wall, and before that we have studied about the glycocalyx. Now today we are going to study about the cytoplasm. Okay, what are the properties of the cytoplasm of the bacterial cell? So in the cytoplasm of bacteria, it is very thick. It is very thick. Actually, what happens, why it is thick, I will tell you reason in just 2 or 3 minutes. But first of all, you note it down. The cytoplasm of the bacteria is very thick and no cyclosis is seen. No cyclosis is seen. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म साइक्लोसिस. साइक्लोसिस मतलब क्या होता है? साइक्लोसिस मतलब होता है क्या? स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन द सेल. स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन द सेल. तो बेटा साइटोप्लाज्म क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ सेल, if this is a cell, okay, and this is the nucleus of the cell, and this is cytoplasm. Okay, so what we will see in the advanced cell or in the eukaryotic cell, that this cytoplasm is streaming around the nucleus. ये जो cytoplasm है इसमें ये सेल के अंदर ही अंदर घूमता रहता है. But because in a bacterial cell the cytoplasm is very thick, that's why no cyclosis is seen. यहाँ पे कोई cyclosis देखने को नहीं मिलेगी. बैक्टीरियल सेल में ये cyclosis प्रोसेस नहीं होती. cyclosis मतलब क्या है? streaming of cytoplasm within the cell. Okay, now another very important thing in the cytoplasm of the cell, क्या कहते हैं, bacteria, membrane bound cell organelles. Okay, membrane bound cell organelles are absent. Okay, बैक्टीरियल सेल में membrane bound cell organelle कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि न्यूक्लियस हो गया. ओके, न्यूक्लियस के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया. ओके, गोल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूल हो गया. ये सारे और भी कई सारे हैं. ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, दे ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. इन सारे सेल ऑर्गेनेली के पास इनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है. बट इन द प्रोकैरियोटिक सेल और इन द बैक्टीरियल सेल दिस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. कहने का मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, वैक्यूल नहीं है. नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी understand that bacterial cell is not having mitochondria. Then how it is performing respiration? Okay, if bacterial cell is not having mitochondria or this other cell organelles, then how it is performing respiration and how it is performing metabolism? So it first you can understand it by mesosome. What are mesosome? आपको पता चलेगा यहाँ पे mesosome क्या है. mesosome are finger-like infoldings of plasma membrane. Okay, finger-like infoldings of plasma membrane. These finger-like infoldings of plasma membrane are known as mesosome. They look something like this. If this is the bacterial cell, okay, and this is the cell wall of bacterial cell. This is the cell wall of bacterial cell, and this is the plasma membrane of bacterial cell. This is the plasma membrane of bacterial cell. Now, in this plasma membrane of bacterial cell, you will see some finger-like infoldings like this. These are the finger-like infoldings which are present in the plasma membrane of bacterial cell. Okay. दे आर नोन एज मीजोजोम. इनको बोला जाता है क्या? मीजोजोम. दे आर मीजोजोम.
इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा। अब बाकी के स्ट्रक्चर भी होंगे थोड़े बहुत, वो हमने अभी नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो इसकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल सेल की, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो इंटरनल फोल्डिंग्स बनी हुई हैं, इन इंटरनल फोल्डिंग्स को बोला जाता है क्या? मीजोजोम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मीजोजोम को एक नाम और दिया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रियन। ओके, mesosome is also known as chondrion. Now what is the function of this mesosome? What is the function of this mesosome? The function of mesosome, मैंने पहले ही बोला था, if the bacterial cell is not having mitochondria, then how it is performing respiration? So the mitochondria is absent, but the prokaryotic cell or the bacterial cell is performing respiration with the help of mesosome. बैक्टीरिया मीजोजोम की मदद से रेस्पिरेशन करता है। फंक्शन क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बैक्टीरिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो वो होता है किसमें? मीजोजोम में। मीजोजोम के एक आध दो फंक्शन और हैं, वो हम बाद में देखेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट उसको नहीं हमारे लिए अभी वो नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, देन the enzymes responsible for aerobic respiration are also present in mesosome. Okay, so it contains all enzymes for respiration. Okay, it contains all enzymes for respiration. This is very important to be noted. Okay, so note it down very carefully. So I hope you all have noted the content what is written over here. Okay. So now what other thing is present in the cytoplasm of the bacteria? What other thing? Some storage granules are also present. Storage granules are also present. Some storage granules are also present in the cytoplasm of bacteria. आपको मैंने बताया था कि cytoplasm of bacteria is very thick. The cytoplasm of bacteria is very thick due to the presence of these storage granules. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स तो है नहीं, तो उनको ऐसे स्टोरेज ग्रेन्यूल से ही अपना काम चलाना पड़ता है फूड स्टोर करने के लिए। तो टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। वन इज glycogen granules, and the second one is volutin granules. These are the two types of granules present in the cytoplasm of bacteria. Glycogen granules, they stores carbohydrates. Okay, glycogen granules stores carbohydrate and volutin granules stores phosphate. This is very important. Glycogen granules stores carbohydrate and volutin granules stores phosphate. They are the major storage granules present in the bacterial cell. Okay. Now another thing is present in the bacterial cell is cytoplasm of bacterial cell. It is nucleoid. Another important thing is nucleoid. ये nucleoid के बारे में हमको पढ़ना है। बेटा मैंने आपको बताया in the bacterial cell because it is prokaryotic in nature, there is the absence of membrane bound cell organelle, that is nucleus. prokaryotic cell में आप पहले से जानते हैं कि nucleus absent होता है। तो
फिर व्हाट अबाउट द डीएनए ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल, बिकॉज विदाउट डीएनए इट कैन नॉट सर्वाइव. तो व्हाट अबाउट द डीएनए ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल. ओके, तो डीएनए ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड. बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए होता है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड. ओके, व्हाट इज न्यूक्लियोइड? इट इज highly coiled circular DNA. Okay, in bacterial cell the DNA is present. Very important to note, in bacterial cell the DNA is present in the circular form. DNA लीनियर नहीं होगा, DNA सर्कुलर होगा. और दूसरी बात, वो जो DNA होगा वो जो डीएनए होगा वो काफी ज्यादा कॉइल्ड होगा. सो द हाईली कॉइल्ड डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया इज नोन एज न्यूक्लियोइड. इट इज present freely in the cytoplasm. Okay, it is present freely in the साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट है, कहने का मतलब इट कैन मूव विद इन द सेल. ये सेल में साइटोप्लाज्म के थ्रू यहां से वहां मूव करता रहता है. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज प्रेजेंट इन एवरी बैक्टीरियल सेल. जितने भी बैक्टीरिया होंगे उन सभी में ये बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा. कैसे होगा बेटा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं. जैसे कि ये एक हमने बैक्टीरियल सेल बनाई, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसके अंदर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बना दी है. ओके, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे मीजोसोम्स होंगे. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे मीजोसोम्स हैं. तो बेटा यहाँ पे कहीं, इसको थोड़ा सा अभी हम बाद में बनाएंगे, तो यहाँ पे कहीं थोड़ा सा एक ये सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा हाईली कॉइल्ड फॉर्म में, इस तरीके से. ये दिस इज हाईली कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए. दिस इज नोन एज, दिस इज न्यूक्लियोइड. This is nucleoid. This is the main DNA. This is the main DNA of bacterial cell. यह बैक्टीरिया का main DNA है. That's why it is known as, also known as main circular DNA. Okay. क्योंकि न्यूक्लियोइड जो है बैक्टीरिया का मेजर डीएनए है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेन सर्कुलर डीएनए. और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि एक छोटा सा एक जो मीजोसोम होगा, वन वेरी स्मॉल मीजोसोम विल बी अटैच्ड टू दिस डीएनए. वन मीजोसोम विल बी अटैच्ड टू दिस डीएनए. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस डीएनए? फंक्शन ऑफ दिस मेन सर्कुलर डीएनए, द फंक्शन ऑफ दिस मेन सर्कुलर डीएनए, it controls all the cellular activities. Okay, it control all the cellular processes. Okay, जैसे हमारी यूकैरियोटिक सेल में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल होती हैं, बट इन द बैक्टीरियल सेल बिकॉज द न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, दैट्स व्हाई ऑल द प्रोसेसेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल आर कंट्रोल्ड बाय दिस न्यूक्लियोइड. दिस इज द मेन सर्कुलर डीएनए ऑफ द बैक्टीरियल सेल. ओके, नोट इट डाउन वेरी केयरफुली.